Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 44 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from previous year SimCats and the set is on 4 variable Venn diagram and the set says a job fair was attended by a 295 IT professional. They were classified under at least one of the four categories: graduate with diploma in information technology, graduate with postgraduate degree, graduate with at least 60% marks in graduation, and graduate with work experience. A candidate may be classified in more than one category. Additional information is given which says 170 graduates had diploma in information technology, 34 graduates had diploma in IT as well as PG degree but scored less than 60% marks in graduation and had no work experience. 12 graduate had a diploma in information technology as well as at least 60% marks in graduation but had neither a PG degree nor work experience. 25 graduates with diploma in information technology had work experience but scored less than 60% marks in graduation degree and do not have a PG degree. 30 graduates who got less than 60% marks in graduation had a PG degree and had a work experience as well but no diploma in information technology. 170 graduates had work experience. 18, 12, 15 graduates belong to exactly one category, that is to say graduate only with diploma in IT, graduates only with work experience, graduate only with PG degree respectively. 61 graduates belong to exactly three of the four categories. 14 graduates did not have a PG degree but had a diploma in IT, scored 60% or above in graduation and also had work experience. 11 graduate who scored at least 60% marks in graduate degree had a diploma in IT and PG degree but had no work experience. 30 graduates belong to all the four categories. 61 graduates belong to exactly one of the categories. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. हाउ मेनी ग्रेजुएट हैड अ पीजी डिग्री, हाउ मेनी ग्रेजुएट्स हु हैड अ पीजी डिग्री स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स, फाइंड द डिफरेंस, हाउ मेनी ग्रेजुएट्स. ठीक है. सो वेन डायग्राम 4 वेरिएबल का है जिसके अंदर अपने को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो प्रॉब्ली ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी हेल्प से अपने को जो पूरा बनने वाला है वो पूरा यूनिक भी बन जाएगा. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस भी ऐसे ही दिख रहे हैं. हाउ मेनी, फाइंड द डिफरेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ठीक है. फोर वेरिएबल वेन डायग्राम को कैसे बनाया जाता है? जनरली पीपल गो विद दिस, एक टेबल से चलता है. ठीक है. एंड और पीपल ऑल्सो यूज फोर साइड सर्कल्स वाला पार्ट. ठीक है. अब इसको कैसे करा जाता है एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. ये कुछ मैं 3x3 का मैट्रिक्स बनाऊं एक, और इसको ऐसा कुछ कनेक्ट कर लो, ये वाला आ गया, और ये कनेक्ट कर लो इससे, ये कनेक्ट कर लो इस वाले से, और इसको कनेक्ट कर लो इस वाले से. ठीक है. अब इसके अंदर कौन कौन से रीजन होने वाले? एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1, ये रीजन होने वाला है. ठीक है. एग्जैक्टली 1 कौन सा रीजन है? यही रीजन है. एग्जैक्टली 1 ये वाला रीजन है, मतलब जेवल जहां पे केवल एक वाली वैल्यू आएगी, जहां पे केवल एक वैल्यू आएगी किसी एक वेरिएबल की. ये भी एग्जैक्टली 1 वाला रीजन है, ये भी एग्जैक्टली 1 वाला भी रीजन है. ठीक है. थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब थोड़ा और इजी समझने के लिए मैं काम करता हूँ इन सबके नाम दे देता हूँ, बिकॉज चार वेरिएबल जो है वो क्या क्या है. ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं DIT. ये आ गया तुम्हारा PG वाला, ये आ गया एटलीस्ट 60% वाला, और ये आ गया तुम्हारा वर्क एक्स वाला. ठीक है. यानी कि यहाँ पे ओनली DIT है, ओनली PG है, ओनली PG है, ओनली 60% वाला है, ओनली वर्क एक्स वाला है. ठीक है. फिर एग्जैक्टली 2 वाले कितने होंगे? एग्जैक्टली 2 वाले यानी कि 4 का 2 कॉम्बिनेशन 4C2 कितना होता है? 6 केसेस होने चाहिए, यानी कि 6 अलग अलग मिलने चाहिए. 6 में तुम्हारा एक तो यही होगा जो कि इन दोनों में कॉमन है, DIT के साथ PG का. एक तो ये वाला हो गया जो कि इन दोनों का कॉमन है. ठीक है. इसके अलावा और कौन से होंगे? DIT के साथ और किसके किसके कॉमन होंगे ऐसा जो DIT और एटलीस्ट 60% वाला हो, तो वो ये वाला 4 में से कोई एक होना चाहिए. और वो कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए. क्योंकि ये वाला रीजन कौन सा होगा? ये एक ऐसा होगा जिसमें 3 आ रहे होंगे. 3 मतलब DIT, PG और एटलीस्ट 60. ये रीजन कौन सा होगा? इसमें 3 आ रहे होंगे. कौन से? DIT, वर्कएक्स और एटलीस्ट 60. ये वाला रीजन कौन सा होगा? इसमें चारों आ रहे हैं, DIT, PG, एटलीस्ट 60, वर्कएक्स. ठीक है. DIT का और 2 वाला कौन सा निकलना चाहिए? एक तो ये मिल गया, एक तो ये मिल गया. ठीक है. एक होना चाहिए था वर्कएक्स वालों के साथ भी, तो DIT का वर्कएक्स वाला कौन सा होगा? यही वाला होना चाहिए. और ये वाला 3 वाला रीजन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है? DIT, वर्कएक्स प्लस PG, ये 3 वाले आ रहे हैं, 3 इंटरसेक्शन आ रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई फॉर PG ऑल्सो. PG का 2 रीजन कौन से होने वाले हैं? DIT के साथ वाला वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड,
पीजी का एटलीस्ट 60 वाला ये होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये है जो कि पीजी और एटलीस्ट 60 वाला है। ये रीजन कौन सा होगा, पीजी भी है, एटलीस्ट 60 भी है और वर्कएक्स वाला भी है। एंड ये रीजन कौन सा होना चाहिए, पीजी और वर्कएक्स वाला, ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, बेसिकली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तुम्हारी इससे। मैंने एग्जैक्टली वाले जितने 1 2 3 वाले उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब मेरे को पता है कि एग्जैक्टली 1 में क्या आने वाला है, 2 में क्या आने वाला है, 3 में क्या आने वाला है। सिंस ये नंबर वाला सेट है, क्योंकि मैंने जब पैसेज पढ़ा था तो मेरे को दिख रहा था यार बहुत डेटा दे रखा है, तो मेरे लिए अब बस मेरे को नंबर फिलिंग करनी पड़ेगी लॉजिकली, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है बस नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 295 तक अपने को पहुंचना होगा, बस ये पूरी कहानी होगी, ठीक है। चलते हैं, करते हैं इसको, फिल करते हैं ना। पहले तो वही पता है 295 आईटी प्रोफेशनल है, यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, 170 ग्रेजुएट हैड डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि 170 है जो कि ये पूरा नंबर बनने वाला है, ये पूरे ये वाले नंबर्स बनने वाले हैं, ठीक है। 34 ग्रेजुएट हैड अ डिप्लोमा इन आईटी एज वेल एज पीजी डिग्री, 34 थे जो कि 34 हैड डिप्लोमा इन आईटी, यानी कि इसमें आना चाहिए था 34 को, एज वेल एज पीजी यानी कि इस वाले ब्लॉक्स में आना चाहिए था, बट स्कोर्ड लेस देन 60 यानी कि 60 से कम वाला, यानी कि इन दोनों में से किसी एक में आना चाहिए था। एंड हैड नो वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि केवल एक ही जगह आ सकता है, वो जगह है ये वाली, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ 12 ग्रेजुएट्स हैड अ डिप्लोमा इन आईटी, 12 ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनकी डिप्लोमा इन आईटी, फिर से ये 7 बॉक्सेस में से कहीं पे आएगा, एज वेल एज एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि इन चारों में से कहीं एक पे आएगा। बट हैड नीदर अ पीजी डिग्री, यानी कि पीजी नहीं है तो वो यहाँ से भी हट गया, बट स्कोर्ड लेस देन 60% मार्क्स, और उसको 60% मार्क्स से भी कम किया हुआ है। सॉरी मैं लग रहा है 2 लाइन मिक्स कर दी, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। 12 ग्रेजुएट डिग्री हैड अ डिप्लोमा इन आईटी, ठीक है जी, ये इसमें होना चाहिए था, एज वेल एज 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, 60% मार्क्स यानी कि ये 4 में होना चाहिए था, ठीक है। बट हैड नीदर अ पीजी डिग्री, बट पीजी डिग्री नहीं होना चाहिए था, यानी कि यहाँ नहीं होना चाहिए था, नॉर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि उसका वर्क एक्स भी नहीं होना चाहिए था। अगर वर्क एक्स नहीं होना चाहिए था यानी कि इसी जगह पे आ पाएगा, ठीक है। डीआईटी होना चाहिए था, एटलीस्ट 60 होना चाहिए था, पीजी नहीं होना चाहिए था तो ये हटा, और वर्क एक्स होना चाहिए तो ये हटा, तो यही नंबर बचा, और ये नंबर क्या था 12, ठीक है। हमने ये भी भर लिया। फिर आगे लिखा हुआ है कि 25 ग्रेजुएट्स विद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर से यही 8 में से कहीं एक पे, हैड वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि ये 4 में से कहीं एक पे, बट स्कोर्ड लेस देन 60%, यानी कि इन दोनों में से कहीं एक पे, एंड डू नॉट हैव अ पीजी डिग्री, यानी कि यहीं पे आएगा, तो ये नंबर आ गया यहाँ पे 25 का। अच्छा, ये भी नंबर मिल गया। फिर लिखा हुआ 30 ग्रेजुएट हु गॉट लेस देन 60% मार्क्स, 30 ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके 60% से कम है, यानी कि वो ये वाला और ये वाले में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। बट हैड अ पीजी डिग्री, यानी कि ये दोनों में से और ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एंड वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ और यहाँ में से एक होना चाहिए, बट नो डिप्लोमा डिग्री, यानी कि यहाँ नहीं, केवल यही होना चाहिए, तो ये नंबर है 30 का। अच्छा जी, ये भी निकाल लिया। सो पॉइंट नंबर 2 वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, उसको यूज करके हमने 4 अलग अलग नंबर्स को पिन कर लिया है अपने गिवन वेन डायग्राम वाले, ये जो डायग्राम हमने क्रिएट करा हुआ है। पॉइंट नंबर 3, 170 ग्रेजुएट हैड वर्क एक्सपीरियंस, तो इनको तो 170 का नंबर दे देते हैं, ठीक है। 170 यानी ये पूरे की बात हो रही है, अब इसमें ओवरलैपिंग भी है तो इसको भी तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। 18, 12 and 15 belong to exactly one category, graduates only with diploma in IT, graduates only with WorkX, graduate with only PG degree respectively, ठीक है। 18 है कौन सा, ग्रेजुएट ओनली विद डिप्लोमा इन आईटी, 12 कौन सा, ग्रेजुएट विद वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा ये है, ये, एंड 15 है जो कि ग्रेजुएट विद पीजी डिग्री, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब मेरे को ये वाला नंबर तो अभी तक नहीं दे रखा, तो बेसिकली 18, 12 और 15 मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया। पॉइंट नंबर 4 भी यूज हो गया। पॉइंट नंबर 5, 61 ग्रेजुएट्स बिलोंग टू दी एग्जैक्टली 3 ऑफ दी 4 कैटेगरीज, एग्जैक्टली 3 वाले कौन से, ये इन चारों का जो सम दिया हुआ है, एग्जैक्टली 3 वालों का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 61, ये कहीं कुछ काम आने वाला होगा इसीलिए दे रखा है। चलो, 14 ग्रेजुएट डिड नॉट हैव अ पीजी डिग्री, 14 लोग ऐसे जिनके पास पीजी डिग्री नहीं थी, यानी कि ये वाले को छोड़ के यहाँ और यहाँ पे कुछ बात हो रही है, ठीक है। बट हैड अ डिप्लोमा इन आईटी, यानी कि इधर की बात हो रही है। स्कोर्ड 60% और अबव, 60% और अबव, यानी कि इन दोनों की बात हो रही है। एंड ऑल्सो हैड अ वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। फिर से वो लाइन पढ़ता हूँ, 14 लोग ऐसे हैं जिनके पास पीजी डिग्री नहीं है, तो यानी कि पीजी डिग्री नहीं है तो ये वाला और ये वाला हो सकता था, ठीक है। हैड अ डिप्लोमा इन आईटी, यानी कि केवल अब यही हो सकता है,
एंड 60% और अबव इन द ग्रेजुएशन, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, एंड ऑल्सो हैड अ वर्क एक्सपीरियंस, केवल यही हो सकता है। तो ये नंबर आ गया आपको 14 वाला नंबर मिल गया। 11 ग्रेजुएट हु स्कोर्ड एटलीस्ट 60%, 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 60% करा, यानी कि इनमें से कोई एक हैड अ डिप्लोमा इन आईटी, यानी कि इन चारों में से कोई एक, एंड अ पीजी डिग्री, यानी कि इन दोनों में से कोई एक, बट हैड डू नॉट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि यहीं पे आना चाहिए, वो आ गया 11। ठीक है। 30 ग्रेजुएट्स बिलोंग टू ऑल दी 4 कैटेगरीज, यार ये वाले को तो एकदम आसानी से भर लिया जाए। ठीक है। 61 ग्रेजुएट्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ दी कैटेगरी, 61 ऐसे जो एग्जैक्टली वन वाले को लेते हैं। एग्जैक्टली वन वाले का जो सम दिया हुआ है 61 दिया हुआ है, जिसमें से वी हैव 18, 15, 12, 18 और 12 हो गया 30, 30 और 15 हो गया 45, तो पीछे पीछे कितना बच गया 16, जो कि यहीं पे जाना चाहिए। ठीक है। नाउ आई एम लेफ्ट विथ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 रीजन है, जिसके सॉरी 4 रीजन, जिनके बारे में अपने को नहीं पता है। ठीक है। चारों को कैसे निकाला जाए, आसानी से निकल सकता है यार। चारों को निकालने के लिए देखो ये पता है 170 होता है, अगर ये 170 होता तो ये पूरे का ही तो 170 है, यानी कि 18 और 12 30, 30 और 14 44, 44 और 25, 44 और 25, यानी कि 49 और 69, 69 और 11, 70 और 80, 80 और 30, 80 और 30 से 110, 110 एंड 30, 140 और 144, 170 में से 144 माइनस करेंगे, यानी कि 6 और 150 और 20, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 26। अगर ये 26 है तो अब इनकी भी वैल्यू निकाली जा सकती है। इनकी वैल्यू के लिए अपने को ये दो वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक ये दिया हुआ है 61 होना चाहिए था, यानी कि 1 2 3 ये चार हिस्सों को मिला के 61 होना चाहिए था, एग्जैक्टली 3, जिसमें से वी हैव 11, 14 एंड 26, तो 26 और 14 40, 40 और 11 51, यानी कि दिस हैज टू बी 10। ठीक है। एग्जैक्ट ये एग्जीक्यूटिव वर्क एक्स वाले का भी निकाल सकते हैं, 170 वालों का 14, 25, 30, 26, 10, 30, 12 को माइनस कर लेंगे तो ये भी निकल सकता है। तो 14 और 26 कितना होता है 40, 40 और 30 होता है 70, 70 और 10 होता है 80, 80 और 30 होता है 110, 110 और 25 होता है 135, 135 और 12 147, 170 में से 147 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और उधर आ गया 23, यानी कि 23 आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 14 और 26 40, 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100 और 110, 110 और 25, 110 और 20 कितना होता है 130 और 35, 135, 135 और 147, 147 में 3 ऐड किया और हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा 23। ठीक है। अगर ये 23 मिला हुआ है तो अब अपने पास केवल एक ये वैल्यू निकालनी बाकी है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 295 का यूज करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 295 में से क्या माइनस करें, पूरे नंबर्स को माइनस कर सकते हैं। यहाँ तक का नंबर कितना है 170, तो यहाँ पे कितना बचा 170 और 30 200, 210, 210 और 15 225, 225 और 16, 225 और 16 241, 241, 241 और 4 244, 244, 264, 264 और 264 और 266, 266 और 276, 295 में से 276 को माइनस करना है ना, 276 को माइनस करना है, तो कितना बच गया 276 में 20 ऐड करते हैं तो 295 बनता है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 19। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 170 पूरा था, 170 और 30 200, 210, 210 और 210 और 15 और 15 हो गया तुम्हारा 225, 225 में यहाँ पे 35 आ गया ना, 225 में 35 ऐड करेंगे 260, 260 में 276, ये नंबर सही था 200। ठीक है। सो बड़ा ही आसान सा सेट था। ठीक है। कहानी कहाँ पे थी, परसेप्शन की। आधे से ज्यादा लोग तो 4 वेरिएबल वेन डायग्राम देख के भाग जाते हैं कि सर करना ही नहीं, 4 वेरिएबल तो आता ही नहीं है और करना भी नहीं है। तो यार लास्ट मिनट के लिए बस मैं ये कहूंगा कि यार देखो इजी होता है, मैंने इसीलिए थोड़ा एक डिसेंट सा सेट उठाया था जहाँ पे अपने को सारे एलिमेंट्स पता थे, बस खाली नंबर फिल करना था। और इसमें एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4 तुमको बस पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे आता है। वो अगर तुमको सेंस है तो तुम्हारा आसानी से सेट यहाँ पे बन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हाउ मेनी ग्रेजुएट हैड अ पीजी डिग्री, पीजी डिग्री यानी कि इनकी बात हो रही है, यानी कि 26 और 34 और 30 और 11 और 15 और 19 और 10 और ये, तो 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100 और ये 115, 115, 115 और ये दोनों का सम कितना होता है 60, 60 यानी कि 175, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए 175। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 34 और 26 होता है कितना, 34 और 26 होता है 40 और 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 110,
120 और 60, 160 है ना, 40 बेसिकली ऐड करेंगे तो 160 और ये 15, 175, ठीक है, ये तो एकदम आसानी से निकल गया। हाउ मेनी ग्रेजुएट हु हैड अ पीजी डिग्री स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन ग्रेजुएशन, स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन ग्रेजुएशन, यानी कि पीजी डिग्री भी होना चाहिए, पीजी डिग्री भी होना चाहिए, और ये वाला यानी कि इस सेगमेंट की बात हो रही है ये वाले में, ठीक है। तो यानी कि 11, 19, 10, 30, 30 और 10, 40, 40 और 30, 70, ये तो यार क्लियर करना, ठीक है। 70। Find the difference between the number of graduates who had a diploma in information technology as well as work experience. Number of graduates who had a diploma in IT as well as work experience. ठीक है, डिप्लोमा इन IT वर्क एक्स, यानी कि ये चारों की बात हो रही है, ये चारों यानी कि 26 और 40 कितना होता है, 26 और 40 होता है 40, 40 और 30 होता है 70, 26 और 14 होता है 40, 40 और 30 70, 70 और ये 95, 95। और इसका डिफरेंस किससे निकालना है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु हैड अ डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज एटलीस्ट 60%, यानी कि ये चारों की बात हो रही है, यानी कि 30 और 11 41, 41 और 14 55, 55 और 12 67, 67, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 6 गया 2, आंसर क्या होना चाहिए 28, ऑप्शन नंबर ए। ये भी यार क्लियर कट एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्रेजुएट हु स्कोर्ड लेस देन 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन हैड अ डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज पीजी डिग्री। 60% वाले नंबर हु स्कोर्ड लेस देन 60%, यानी कि इनकी बात हो रही है, ये वाले और ये वाले की, ठीक है। हैड अ डिप्लोमा इन आईटी, यानी कि इन दोनों और इन दोनों की बात हो रही है, एज वेल एज पीजी, यानी कि ये नंबर और ये नंबर की बात हो रही है, 26 और 34, 26 और 4, और ये 60, 40 और ये 20, ठीक है, 26 और 4 30, 30 और 30 60, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर मिल गया 60, ठीक है। सो एकदम सही सेट है, सीखने के हिसाब से, लास्ट मिनट की प्रिपरेशन के हिसाब से एकदम सही सेट था। एंड प्रैक्टिस कर लो, एक दो वेन डायग्राम ऐसे 4 वेरिएबल वाले, इट विल बी इजी, डुएबल होता है। इसमें जब मैक्सिमम मिनिमम आता है तो थोड़ा ज्यादा एलओडी आ जाती है, बट ठीक है, एटलीस्ट तुम ये वाले की वजह से तुम अब अगर एक इजी वेरिएंट आएगा तो कर तो पाओगे ना, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।